Alright, ladies and gentlemen, I'd also like to invite on stage Dr. Shekhar Salkar and the Secretary of Health to please join us on the dais. Dr. Badwe as well. We're really honored to have you here with us. A warm welcome to you. Secretary of Health. All right. Ladies and gentlemen, at this moment we are reminded of the vision, collaboration and support of all these esteemed dignitaries whose presence here today marks a historic moment in bringing this summit to life. Thank you all for being here. May I now invite our esteemed dignitaries to come forward for the Dhanvantri Pujan, a sacred ritual honoring Lord Dhanvantri, the divine healer whose blessings symbolize the well-being of all. नमामि धन्वन्तरिमाते देवं सुरासुरे वन्दितपादपद्मम्
and all present here, especially all the dignitaries. We welcome you all with much humility and lot of honor from all the Ayurveda fraternity from Goa as well as complete Bharat. Respected dignitaries, our chief guest for today, Shri Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, Param Puja Acharya Balkrishnan Ji, today's keynote speaker, Managing Director, Patanjali Yogpeeth, Shri Sadanand Tanawade Sir, Rajya Sabha Member, Guest of Honor for today, Managing Director, Professor P.K. Prajapati, Director, All India Institute of Ayurveda, our Mrs. Pratima Dhon, GCCI President, Shri Dr. Shekhar Sarkar, Director and Chief Consultant at Manipal Hospital, our Chief Secretary, Kandevalu Sir, Government of Goa, and Dr. Rajendra Badwe, former Director of Tata Memorial Hospital, Dr. Meenal Joshi, Deputy Director, Ayush, and all our esteemed scholars, honored guests, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to welcome you all to the All India International Ayurveda Wellness Expo and Summit, a global conference celebrating India's timeless science of healing and holistic well-being. Ayurveda reminds us, Swasthasya Swastha Rakshanam Aturasya Vikara Prashamanam. To preserve the health of healthy and to alleviate the ailments of the diseased. This profound principle lies at the very heart of today's gathering. As the world increasingly looks towards natural, preventive, and sustainable systems of healthcare, Ayurveda, naturopathy, yoga, and combined and inclusive practices stand not as an alternative, but as a combined and a complete way of life, tested by time and validated by experience. This summit brings together visionaries, researchers, practitioners, policy makers, and industry leaders from across the globe, united by a shared purpose to take Indian system of medicine and wellness from ancient wisdom to global relevance. Today we are deeply honored by the presence of Param Puja Shri Balkrishna Acharya Ji. Acharya Ji is not only a towering figure in the revival and global propagation of Ayurveda, naturopathy and yoga, but also a living embodiment of the values it teaches us: discipline, simplicity, service and dedication to humanity. Through his relentless efforts in research, foundation, education and indigenous innovation, he has played a historic role in bringing Ayurveda from the pages of classical texts into the daily lives of millions. Acharya Ji, your vision has inspired a generation to reconnect with India's traditional knowledge systems with pride and scientific rigor. It is a matter of great honor and gratitude for all of us to welcome you amidst us today. We extend to you our warmest and most respectful welcome. Other than this, we have our guest speakers. We have amongst us our Lok Sabha member, Shri Narendra Sawaikar Ji. We have lot of experts coming from different fields, not only from Ayurveda, but physiotherapy, naturopathy and yoga, as well as allopathy. So this is a kind of an integrative platform that has been created, and Government of Goa has given a complete support towards this summit. So my great welcome to you all on behalf of Goa Council of Ayurvedic and other allied Indian systems of medicine and the organizing team. With these words, I once again welcome all the distinguished guests and participants and wish you all every success in this summit. We look forward to having a great experience over coming 3 days. Thank you one and all and have a great day. Jai Gomantak, Jai Ayurveda.
Thank you, Dr. Sneha, for your relentless dedication in shaping this remarkable summit. Ladies and gentlemen, this organizing committee is headed by Dr. Sneha Bhagwat, Dr. Dharmendra Prabhudesai, the Vice President, Dr. Devdutt Sel, the Organizing Secretary, Srimati Pratima Don, President of Goa Chamber of Commerce and Industry, and distinguished members Dr. Meenal Joshi, Dr. Jay Pereira, Dr. Mahesh Verlekar, and Dr. Rita M. D'Souza Evas. They all have poured in their tireless efforts for this event, keeping the government of Goa's vision of Viksit Goa 2037, and have brought this first of its kind summit to life. I now request Dr. Rajendra Barve, Padma Shri, who is also a surgical oncologist and former director at the Tata Memorial Center, to please come forward and address the gathering. Honorable Chief Minister, Swamiji, dignitaries on the guests and friends. It is indeed a pleasure to be here in Goa for two reasons: the affection that this land exudes, but more importantly, what is important is that cancer, my specialty is cancer, so I will speak about cancer. Cancer in Goa as well as in rest of India is much less than what it is in the West. So there is something good about it. To give exact numbers, in Goa it is about 90 per 1 lakh population per year, and this number in United States is 370 per 1 lakh population. So almost 3 or 4 times more than what we have. But good part of it is almost 70% of our cancer is preventable, and lot of prevention comes out of Ayurveda, our lifestyle, and I personally feel that we should have pride in what we have. Imagine that 100 number or 90 number can be reduced by 2/3 by following what we have been following for last so many years, what our ancient traditions and knowledge tells us as it is in Ayurveda. While talking to the Chief Minister as well as Swamiji, it just stumbled upon me that the intestinal cancer is quite common in this part of the country, which is not very common in many other parts because of the amount of non-vegetarian diet that we have. It's not bad to have it, but one non-vegetarian with little vegetables in it, by the side there is a koshimbir by the side of it, and there is spices. All that improves the outcome to a great extent and reduces cancer. So there is traditional goodness that needs to be brought in. This kind of conference I find is of great importance because all of us, if we have problem, we run to an allopathic area. I am an allopathic doctor. We go to an allopathic place. Why does that happen? Why can't we just stick to our own traditional medicine? And the reason is very simple. We need to have data which supports the solidness with which our medicines can cure. And it is for this purpose I had requested the Chief Minister, and he had readily agreed that we should have a combination wherein an allopathic specialist and an Ayurvedic specialist sits across the table to decide what is best, documents that the results are excellent, those results published, we will put our own medicine on the pedestal. I very strongly feel in today's medicine that I practice in an allopathy, a small benefit costs lakhs of rupees. And that is where the problem is. Our medicine is cheaper, it is effective, and we need to prove it. It is as good as what the West is. I have huge pride in being Indian and in Indian tradition of medicine. Thank you very much. We sure needed that little morning motivation. It is very important to get back to basics and be deeply rooted with our traditional medicine. Thank you so much, Dr. Barve. Ladies and gentlemen,
ये हमारे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है कि हम भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता, प्रतिष्ठित विद्वान और मार्गदर्शक पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निर्देशक परम पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी आज हमारे बीच में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। As we all know that Acharya Ji is a renowned authority in Ayurveda, Yoga, Sanskrit and medicinal plant sciences, deeply rooted in the Guru Shishya tradition. Under his visionary leadership, Patanjali Ayurveda Limited has grown into a major enterprise firmly anchored in Ayurvedic principles, ethical practices and indigenous knowledge systems. His initiatives through institutions such as the Patanjali Yogpeeth, Patanjali Research Foundation, Patanjali Foods Limited, the University of Patanjali and Acharya Kulam have touched and transformed lives of millions, integrating health, education, research and holistic well-being. Through expansive outreach programs, he has championed free yoga services, primary Ayurvedic health care centers, large-scale community wellness initiatives, redefining how holistic health is practiced and accessed both in India and across the globe. Recognized among India's top 50 most influential personalities, Acharya Shri Balkrishna Ji has been conferred with multiple honorary doctorates and prestigious accolades, including the 2025 honorary degree of philosophy, the honoris causa, in recognition of his outstanding contributions to Ayurveda and education. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming with a thunderous round of applause the keynote speaker for today, Param Pujya Acharya Shri Balkrishna Ji. भारत माता की वंदे वंदे। गोवा की पवित्र भूमि, यह संस्कृति की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, यह वीरता की भूमि है और इस वीरता और संस्कृति ने हमें उत्तराखंड से यहाँ पर आप सबसे मिलने के लिए लालायित और प्रेरित किया। इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इस आयोजन में जो हम इंडिया इंटरनेशनल आयुर्वेद एंड वेलनेस एक्सपो और ये जो समिट का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इस मंच पर आयुर्वेद की परंपरा से जिन्होंने अपने जीवन को जोड़ा, आयुर्वेद और सनातन जिनके हृदय में बसता है, जो लोगों को परंपराओं से जोड़ करके सरल और सहज रूप से वो रोग मुक्त रहे, वो समृद्धि को प्राप्त करें, स्वास्थ्य को प्राप्त करें, ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण हैं जो युवा हैं, यशस्वी हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी। मुझे तो इसलिए भी ज़्यादा खुशी है, वैसे तो डॉक्टर प्रमोद सावंत लिखते पर ये हमारे वैद्य जी हैं, तो पहले पहचान जो है वो कभी छूटता नहीं। कभी कभी मैं कहता हूँ हम कितना भी काम कर लें पर आचार्य बालकृष्ण को लोग पहले वैद्य के रूप में जानते, बाकी सब बाद में। तो हमें गर्व है और हमारा सौभाग्य है और हमारे बहुत ही विद्वान, ऊर्जावान, सरल, विनम्र ऐसे आदरणीय श्री सदानंद जी जो राज्यसभा के MP हैं, यहाँ मंच पर हैं। आदरणीय हमारे प्रोफेसर, हमारे वैद्य जी भी हैं ये, और हमसे बड़ा प्रेम है और हमें खुशी है कि अभी डायरेक्टर के रूप में आयुर्वेद के जो एम्स है उसमें आप सेवा दे रहे हैं, आदरणीय PK प्रजापति जी। और यहाँ पर हमारे मंच पर आदरणीय यतीन्द्र मलारकर जी और आदरणीय विजय सक्सेना जी यहाँ पर हैं, उनका मैं करता हूँ। और आदरणीय श्री भी
कंदवेलु जी और आदरणीय जिनको अभी आपने सुना पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र जी यहाँ पर हैं, और इन सब के आयोजन में आदरणीय श्री बी कंदवेलु जी मुख्य सचिव यहाँ पर हैं जी, और मंच पर बाकी आदरणीय बहन जी हैं, और सबके सूत्रधार आदरणीय बहन हमारी स्नेहा भागवत जी, जिनके प्रयास से ये सब आयोजना में ये इतना सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। और मेरे मंच के सम्मुख सभी हमारे प्रतिष्ठित सम्मानित बंधु भगिनी और अनेक प्रांतों से, स्थानों से और देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए सभी भाई बहन, पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए हमारे पतंजलि योग समिति, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय अनुसंधान सहित अनेक संस्थानों से पधारे हुए बंधु और भगिनी, आयुर्वेद सर्वाधिक प्राचीन परंपरा में से एक परंपरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी चिकित्सा विधाएं इस दुनिया में आई और गई। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमने पाया पूरी वर्ल्ड के अंदर लगभग 965 हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। 965 चिकित्सा एक तरह से परंपराएं हैं। यदि हम बात करें चिकित्सा विधा की, जिसके अंदर चिकित्सा सिद्धांत होता है, उनको हम ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं। हीलिंग प्रैक्टिसेस यद्यपि बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट सिस्टम दुनिया में सिर्फ 9 है। मॉडर्न यदि एलोपैथिक को और होम्योपैथिक को जोड़ते हैं तो 11 हो जाती है। तो पूरी दुनिया में 11 ही पद्धतियाँ हैं। और उसमें बड़ी बात क्या है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर उन 11 पद्धतियों में से आप ये मानिए कि 6 पद्धतियाँ हमारे देश के अंदर हैं। जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, स्वारिंपा, आपने ये देखा 1 2 3 4। इसके साथ साथ में योगा नेचुरोपैथी, वह आयुर्वेदा का ही एक पार्ट है। उसके बाद में होम्योपैथिक भी भारत में है और एलोपैथिक भी है। नहीं है सिर्फ आपका इजिप्शियन मेडिसिन, ग्रीक का मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन और आपका कोरियन और जापानीज मेडिसिन। इतनी को छोड़ करके सब कुछ इस देश में है। यानी जिस देश ने पूरी दुनिया को चिकित्सा विज्ञान से जोड़ा, पूरी दुनिया की पद्धतियाँ हमारी पद्धति से प्रभावित हुई, यह कार्य पतंजलि बड़े रूप में काम कर रहा है। बहुत इसके ऊपर हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा रिसर्च साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो पूरी प्रामाणिकता के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी विधाएं हैं, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनका मूल यदि है तो वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद से सारी विधाओं का प्रादुर्भाव है। इसलिए आप सब इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि वो हमारे ऋषियों की देन है। कई बार जब योग की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है, तो कुछ लोग उसको किसी संप्रदाय की चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं कि योगा तो ये तो हिंदुओं की बात है, अरे योग आयुर्वेद तो थोड़ा सा ये तो सनातन की बात है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये बात सत्य है कि हमारे जो ऋषि हैं, जिन्होंने योग, आयुर्वेद और जिन्होंने हमारी ये चिकित्सा विधाओं को दिया, वह सनातन गौरव के परंपरा की उच्च स्तरीय दिव्यात्माएँ थी। पर उन्होंने विधा को किसी मनुष्य के लिए इंगित करके, किसी क्षेत्र के लिए, किसी जाति के लिए, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता के लिए उन पद्धतियों का उन्होंने विकास किया और वो संपूर्ण मानवता के लिए उनको समर्पित किया। दुनिया में कोई परंपरा ऐसी नहीं है जो सुबह उठ करके कहती हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये हम ही कहते हैं। हम चिंता सिर्फ मानव की ही नहीं करते हैं, मानव से इतर हम प्राणी मात्र की चिंता करते हैं। हमें सबकी चिंता है, सबकी सुख की अभिलाषा है, सबके आनंद की चाहत है। हमने तो इसीलिए कि आपो देवता
अग्नि देवता, वायु देवता, हमने सबको देव माना। देव मानने का अर्थ ये नहीं है कि हम आरती लेकर के सिर्फ उनकी आरती उतारें। देव मानने का मतलब यह है जीवन में सुख चाहिए, उनका सदुपयोग करो, उनका सम्मान करो। ये हमारी संस्कृति का मूल है, यही सनातन है। सनातन की प्रवृत्ति सुख का साधन है, सनातन से विमुखता दुख का कारण है। और इस तरह के जो आयोजन हैं हमसे, हमारे मूल से जोड़ने का काम करते हैं। तो आइए हम सब इस तरह के आयोजन से अपने मूल से जुड़ें। इसको मूल से जोड़ने का जो कार्य और प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये अभियान चला है, यह अभियान निरंतर बढ़ता रहे, ये हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और हम हमेशा आपके साथ हैं। जहां लगाओगे, जो काम कहोगे, आदरणीय बहन जी ने कहा, हम पूरी पतंजलि की टीम लेके आ गए। आप जहां कहोगे वहीं लग जाएंगे। हम चाहते हैं ये गोवा, ये सुंदर स्टेट, सुंदर प्रांत है। ये सिर्फ क्यों गोवा को समुद्र के किनारे भगवान ने, प्रकृति ने दिया, घूमने के लिए लोग आए। मैं अभी सुबह सुबह कह रहा था कि लोग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आते हैं। जैसे केरला में जाते हैं तो नॉर्मली, पीछे अभी एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि लगभग 15 दिन 18 दिन लोग ठहरते हैं। यहाँ का एवरेज रेशो निकलवाओगे आप तो मुझे लगता है 2-3 दिन निकलेगा। तो यदि आप वेलनेस को, आयुर्वेद को बेहतरीन जोड़ देते हैं तो जो पर्यटक आया है, यदि उनको रुकने का टाइम यदि दुगुना आप कर देते हैं तो दुगुना प्रांत की आय की वृद्धि होगी। यहाँ से सिर्फ पाश्चात्य का प्रभाव नहीं, यहाँ से सनातन का गौरव भी लेकर के वो आदमी जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और इस क्षेत्र में आपके माध्यम से वो काम हो सकता है, क्योंकि आपके हृदय में सनातन बसता है, उसका गौरव का भाव आपके मन में है, वो स्थापित हो सकता है। खुशी की बात है, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब राजेंद्र जी हमें मिले। ये बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, पद्मश्री हैं, पर इनके मन में जो भाव है, अभी हम काफ़ी रिसर्च के लिए भी साथ में काम भी करने वाले हैं, बात हो चुकी है। आप कह रहे थे कि कैंसर कम है गोवा में, खुशी की बात है, पर मैंने सुना कि डायबिटीज को ज़्यादा है। तो यही दुख की भी बात है, क्योंकि हमने सुना कि लगभग यहाँ पर हर चौथे व्यक्ति को डायबिटीज है और दूसरे तक की होने की संभावना है। तो खुशी भी मनाइए पर सावधान भी हो जाइए, ये दोनों ही बातें हैं। क्योंकि हम नकारात्मक बात नहीं कहते हैं, पर हम आपको सजग जरूर करते हैं, सावधान जरूर करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए। योग सहज प्राप्त है। श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से पूज्य स्वामी जी ने पूरी दुनिया में आज 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक स्वामी जी ने योग पहुंचाया है। क्या आपको पता है कि सारी वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है, यदि सारी धरती में यदि कोई ऐसा शब्द है जो उसका बेसिक मीनिंग सबको पता है तो योगा शब्द है। क्या आप किसी को बोलोगे योगा मीन्स, तो ये कह देगा श्वास लेना, छोड़ना और 2-4 टांगे उठाना, इतना तो सबको पता है। ऐसा कोई दूसरा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग सारी धरती को पता हो। तो जिसका सारी दुनिया को पता चल गया और आप बेखबर रहें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप योग करिए, प्राणायाम करिए। और योगा की हमारी टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी काम लेते हैं, इनसे और काम ले लो आप। ये सब सेवा के लिए तैयार है हमारे भाई बहन। तो यहाँ बढ़िया सेवा का, योग का काम चल रहा है। तो इसीलिए जो शक्ति है सनातन की, हमारी परंपराओं की, तो जो मधुमेह है, डायबिटिक जैसी जो बीमारियाँ, वो रिवर्स हो सकती हैं आराम से। पतंजलि उसका बेहतरीन उदाहरण और मॉडल है। तो आप प्रतिदिन योगाभ्यास और प्राणायाम करिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस योग को यूएनओ में ले जा करके उसको प्रामाणिकता का एक तरह से स्टैंपिंग करने का, ठप्पा लगाने का काम किया। ये भी एक बड़ा काम था, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हम करते हैं, पर शायद बाहर दुनिया करती है कि नहीं करती है। अरे भाई, दुनिया कर रही है। अब तो चेतो, अब आंखें नहीं खुलेंगी। मैं आपको कहता हूँ, आयुर्वेद के ऊपर भारत से ज़्यादा बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। और एक और आपको सावधान करके जाता हूँ, अभी योग के ऊपर विदेश के अंदर कुछ संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं कि वो यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कहने वाले हैं कि योगा का जो उद्गम है, योगा की जो भूमि है, वो भारत नहीं है, योग तो यूरोप से पैदा हुआ है। तो यदि आप सोते रह गए ना,
जैसे हमारे बासमती, हमारे नीम, हमारे हल्दी, ये पेटेंट कराने के पीछे लग गए ना, ऐसे कहीं आप हाथ मलते नहीं रह जाना कि दुनिया योग कर कर के लाभ ले लें, पेटेंट ले ले और फिर हम बाद में फाइटिंग करते फिरें। इसके लिए पहले ही सजग होना होगा। और इस तरह के आयोजन में जब एक विधा के, एक भाव के हजारों लोग इकट्ठे होते हैं तो सबकी ऊर्जा भी बढ़ती है, सबके मन में उत्साह भी बढ़ता है, सबको प्रेरणाएं भी मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारे सत्र होंगे, सेशंस होंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको बहुत कुछ बताएंगे। यहाँ से सीखिए, समझिए, समझ कर के जीवन में उतारने का प्रयास भी करिए। जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन विधाओं से जुड़ना। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम समझे तो सही। देखिए, आपको बोध होता है कि आग में हाथ देने से हाथ जलेगा, कोई हाथ देता है क्या? यदि हमें बोध हो जाए कि हम यदि योग और प्राणायाम करते हैं तो हम निरोग रह सकते हैं, तो कोई बीमार रह सकता है क्या? यदि आप बीमार हैं तो विश्वास में कहीं कमी है। तो आज यहाँ से उस विश्वास को अपने अंदर धारण करो, उस विश्वास को यहाँ से लेके जाओ। ये जो जगह है ना, ये जो पवित्र, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये नाम पर अवस्थित यह प्रांगण, ये जो ऑडिटोरियम है ना, यहाँ से आज यही संकल्प लेकर के आप जाइए कि अब बहुत हो गया। जितने दिन छूट गए, जो रह गए, जहाँ पहुँच गए, कोई बात नहीं। अब आगे हम इन चीज़ों से वंचित नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्त भगवत्तरः, कि मेरा हाथ भगवान है, यानी मेरा शरीर देह यह देवालय है, यह शिवालय है। इसकी पवित्रता को बनाना, इसकी चेतनता को उच्च स्तर पर पहुंचाना मनुष्य का कार्य है। भोगार्थ भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, यह भोग के लिए देह है, पर सिर्फ भोग के लिए नहीं है, ये अपवर्ग के लिए भी है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यमूलमुत्तमम, इसका अर्थ यही है, दुनिया में कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो सेहत बनाओ। जिंदगी भर हम कमाने में लगते हैं, सेहत को खोते हैं, फिर जो कमाया होता है उसको सेहत को सुधारने के लिए लगाते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप थोड़े से पहले से सजग और जागरूक होए तो। बीमार होकर के हॉस्पिटल जाना मजबूरी है, कौन जाना चाहता है? परंतु बुद्धिमत्ता यह है कि आप बीमार ही ना पड़ो, इसके लिए उपाय करो। इसके लिए योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा है। आयुर्वेद के ऋषि कभी नहीं कहते हैं कि तुम बीमार पड़ोगे तो अब तुम आयुर्वेद का सेवन करना। वो कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, पहला मंत्र। फिर आतुरस्य रोग प्रशमनम तो बाद में है, कि पहले जो तुम, जैसे भगवान ने कितना सुंदर आपको बना करके उस धरा पर भेजा था, कितने अच्छे थे, आप वैसा ही अपने आप को बना करके रखें। भगवान ने तो अच्छा बनाया था, बिगाड़ा तो हमने स्वयं ने अपने आप को है। इसलिए हम अपने आप को अच्छा रखें, ये आयुर्वेद सिखाता है। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब कम्बिनेशन की बात कर रहे थे। हम इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन की बात अब पतंजलि से बड़े स्तर पर पूरी दुनिया के लिए उठ चुकी है। पैथी का जो विरोध नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर हम आयुर्वेदा और वेलनेस की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई एलोपैथी की महत्ता कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। पैथियों का अपना सामर्थ्य है, पैथी की अपनी आवश्यकताएं हैं, परंतु वो पैथियाँ जब हमारे पेट में जाती है ना, पैथी नहीं रहती है, सिर्फ बायोकेमिस्ट्री काम करती है। ये बात तो सही है। इसलिए हर विधा में रिसर्च भी जरूरी है। तो पतंजलि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए बड़ा काम कर रहा है। यह भूमिका को हमें निर्वहन करना है। और जहाँ पर भी साधन के लिए, देखिए, जब हम 90% बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो केयर की जो बात आती है ना, वो हम योग और नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से बेहतरीन कर सकते हैं। और क्रॉनिक डिजीज में भी बेहतरीन योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी काम करता है। तो इसलिए इमरजेंसी के लिए, क्रिटिकल के लिए आप एलोपैथी को रखिए। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, यह संदेश भी जाना चाहिए, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हमारे पद्मश्री राजेंद्र जी, कि हम आयुर्वेद और योग वगैरह को अल्टरनेटिव मेडिसिन क्यों कहते हैं?
वो तो जीवन का पार्ट है। अल्टरनेटिव तो एलोपैथिक को कहना चाहिए कि वो इमरजेंसी की आवश्यकता है। तो ये संदेश भी आप यहाँ से लेकर के जाइए। तो अपने जीवन को ठीक करो। अल्टरनेट कहते ही हमारे को ना उदासीनता आ जाती है, वो चेतनता खत्म हो जाती है, हम लापरवाह हो जाते हैं। वो जीवन का मुख्य अंग समझ करके जाओगे ना तो लापरवाह खत्म हो जाएगी। लगेगा ये तो मेरा मुख्य अंग है। जैसे आपको सुबह उठ करके नाश्ता करना ज़रूरी है, वैसे सोचो सुबह उठ करके आपके लिए योग करना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, तो उसके में थोड़ा सात्विकता भी हो तो और बेहतर है। तो ये प्रतिदिन ज़रूरी है। अब ऐसा सोचें, हम कभी कभी कहते हैं कि बद परहेजी सप्ताह में 1 आध दिन करने से चलो चल जाता है आयुर्वेद से, पर यहाँ तो उल्टा है। 7-6 दिन बद परहेजी करता है आदमी, सोचता है एक दिन आज हम सात्विक खाएंगे, आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, आज तले हुए नहीं खाएंगे। उसको उल्टा कर दो, 6 दिन सात्विक हो जाओ, एक दिन तले भुने खा लो तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो यह एक सुंदर प्रयास के लिए मैं भूरी भूरी आपकी इसके लिए मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और कल प्रातःकाल परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी भी आएंगे, आप सब आना। योग कहाँ कराने वाली है बहन जी? सुबह योग सेतु जहाँ है वहाँ पर योग होगा, तो सब आना। जो बाहर से आए हैं घर वालों को तो नहीं बुला सकते, पर जो गोवा के हैं, लोकल हैं, कम से कम अपने साथ 5-5, 10-10 लोगों को लेकर के आना। कल अच्छा मौका है और हम भी यहाँ कल भी हैं, हम आनंद लेंगे, परसों तक हैं, आप सब आनंद लीजिए, सबको बुलाइए। और मैं कहता हूँ कि इस आयोजन से, देखिए मीडिया के बंधु भी यहाँ पर हैं, कई बार होता है कि ये आयोजनों से क्या होगा। मैं कहता हूँ इस आयोजन से यदि 1000 लोगों को डायबिटीज होने से बच गए, 500 लोग कैंसर होने से बच गए, 500-1000 लोग हार्ट डिजीज होने से बच गए, तो कितना रेवेन्यू बच गया। ऐसे आयोजन तो हर रोज होने चाहिए। यानी कि आप लाखों खर्च करके प्रांत का करोड़ों रुपया बचा रहे हैं। इससे बेहतर सुंदर और कोई आयोजन नहीं हो सकता। मेरी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन हो। That indeed was some lovely food for thought for all of us. I'm guessing no more cheat days, right? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके और योग गुरु रामदेव बाबा जी के प्रयासों से आज देश और दुनिया भर में लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है और अपने स्वास्थ्य को ठीक किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। Ladies and gentlemen, we now arrive at a truly historic moment. Today, Goa takes a decisive step towards a future rooted in wellness, wisdom and sustainable living as we witness the unveiling of the Goa Wellness, Ayurveda and Yoga Policy 2026. May I request Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister of Goa, along with our esteemed dignitaries on the dais, to kindly unveil the policy. Ladies and gentlemen, this policy stands as a harmonious confluence of ancient Ayurvedic knowledge, the discipline of yoga, and Goa's vision for holistic public health, setting a benchmark for integrative wellness governance. As this policy is unveiled, we mark not just the launch of a document, but the beginning of a movement, one that nurtures preventive healthcare, mindful living, and global leadership in wellness.